आपने जितनी भी पढ़ाई हासिल की है, जो भी स्किल्स एक्वायर की है, उसको यूटिलाइज करिए, घर में मत बैठिए। आप जो कर सकते हैं कंट्रीब्यूटर बनिए, खुद के लिए बनिए, फैमिली के लिए बनिए, अपने बच्चों के वेलफेयर के लिए बनिए। So yes, definitely we need to teach the girl child also regarding all these financial terms, all these financial independences, क्योंकि ये आगे की जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है। एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च तो यही कहते हैं कि वर्किंग वुमेन भी घर के मेजर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स को नहीं समझती हैं। वर्किंग वुमेन भी 95% वुमेन घर के इन्वेस्टमेंट्स के फैसले नहीं लेती हैं, स्टॉक मार्केट से दूर रहती हैं, म्यूचुअल फंड्स नहीं खरीदती हैं। हर गर्ल को, हर वुमेन को ये समझना चाहिए कि आप किसी और का पैसा ले सकते हैं, किसी से ले सकते हैं, कोई आपकी ख्वाहिशें पूरी कर सकता है, लेकिन जो चॉइस ऑफ फ्रीडम आप अपने पैसे में फील करोगे ना, जब आपका मन करेगा जिस चीज़ पे हाथ रखने का, आप ले पाओगे, you will feel great about it. It's a great sense of achievement. सबसे बड़ा important part is like how your family, how your colleagues, how the people you are working with relate to you and how you relate to them. How, like, because it's always tit for tat. If you are very impatient about results, you might not reach anywhere in life, right? So you have to be patient, stay calm and keep doing your work. Suddenly you will see, oh, I have become this in life. Hello everyone, how do successful women manage their work lives and family lives? What really pushes them forward and what pulls them down? Do we still have those glass ceilings which we have been talking about for centuries and decades, or have we been able to break them? For all the aspiring women leaders, managers and entrepreneurs, this is a must-watch video. We have with us two very bright women leaders who also happen to be the students of my course. Very welcome, Sapna and Pragati. Thank you so much, sir. Thank you so much. Let's begin with some of your introductions. कैसी आपकी जिंदगी रही है, क्या आपने किया है, किसके लिए आप प्राउड है, कहाँ पे आप फंस रहे हो, हमें सब कुछ बताइए. Hello sir, I'm Pragati Agrawal. I would say right now I'm in Axis Bank as a branch manager, leading a branch with 20 people approximately. Life has been a ups and downs kind of thing always, because if it is a straight line then it is not being going to be a life. It's boring. It's boring. Obviously it's boring. So I will say there have been challenges also, but yes, there were good moments also in the life. कितना वर्क एक्सपीरियंस है प्रगति आपको? I have total 16 years of experience. 16, wow, that's a lot. Yeah, it in is. banking industry. In banking itself. सपना आपका बताइए. Hi sir, thank you so much for inviting us here. I come from EdTech background basically. I've got 17 years of experience now in this 17, industry. wow. Yeah. So I've been into content industry from beginning of my career. I've started off as a lecturer in engineering college, but going forward I've been into this EdTech industry so far. And last role I was acting as director for content and pedagogy at Unacademy. Okay. And currently I'm a founder for my own company, Alpha Beta Digi Solutions. So now you are an entrepreneur. Yes, sir. Okay. So tell us, both of you, what has been your work-life journey been, and what are like the real challenges you have faced, and what are some of the things you are proud of accomplishing? Yeah, so to begin with the challenges definitely comes our way in terms whether it's a boy or girl, right? Doesn't matter. But in case of us, when we are at mid-level or lower levels of the job, right? So I don't think it's very difficult for us, right? But whenever we have to cross that level from mid to senior level managements, there are a lot of, hindrance that, people want to give us execution role always. Is she a right person to be at a position wherein we need a lot of authority, we need a lot of people management to happen, right? So this always has been a dilemma and a big question mark in minds of people, right? So decision making is something that I feel people are still having some resistance in giving to women, right? But having said especially that, at the power positions. Especially at the power positions. If I talk about, say, VP level role or director level roles or SVP level roles, right? So this has always been a challenge for a women, because we have to double prove ourselves, keep on proving ourselves that yes, we have worth it, we are capable of handling these things. We can do it. Because they always believe that we are good at execution level roles. But what needs to be done or how decisions should be taken care of at business level, I find that
people still have hindrance that we are incompetent to handle those roles. You think there are still those notions out there? Yes, Yeah, definitely. there are Let's be actually. honest. Like I would say, the biggest challenge that the females face is that the biological cycle and the career cycle, they are never in sync. Like if a woman is at the age of 35, people, the societal pressures are like, you have to be married, you must have kids, and at the same time they are also aspiring for moving from middle level to the senior level. So this biological clock and the career clock is जो दोनों का बिल्कुल difference है ना, that always creates a hindrance for the ladies. And you know, these hindrances are there. They are there They are forever. there पर forever. आप दोनों ने तो कुछ किया है, 16 साल काम किया बहुत Yeah. सक्सेसफुली. तो कैसे किया आपने, जरा बताइए हमें. I would say like yes, definitely I had done something, but सबसे बड़ा important part is like how your family, how your colleagues, how the people you are working with relate to you, and how you relate to them. How, like, because it's always tit for tat. ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है. So the same thing is applies here also. Like even I have always believed that wherever you are, you have always to think about the next role. Then only you can work like that. You have to be aspirational. You have to be सपना आप aspirational. बताइए, आप कैसे पहुंची यहाँ It तक? always feels, you know, it gives a nice kick to me, to aspires me to be at the top level roles, because I always have been a societal norm breaker, always throughout my life, right? When we get married, for example, a boy and a girl get married, so girl has a tremendous pressure from all the sides, Yeah, right? definitely. So because you are assumed to be someone who will take care of family, who will take care of kids, who will have kids on time, who will, you know, we have to manage all the responsibilities in sync. But at the same time, women is also looking herself as an individual identity. I don't want to lose my individual self as a sapna, right? So what aspires me, I always have believed in that nothing is going to happen overnight. I have to, if I really want to achieve something extraordinary, the effort has to be in that same proportion extraordinary. Ordinary effort will lead me to ordinary positions. Yeah. Extraordinary efforts will lead or may lead me to तो extraordinary आपने वो roles. एफर्ट्स करे हैं वो throughout. एफर्ट्स मैंने किए हैं, और मेरे लाइफ का जो आई वुड से द फॉर्मूला to my own life is that I call a GDP formula for myself. GDP, okay. Yeah, so that's great. That's great. Discipline and passion. Great discipline and passion. Yeah, Wow. these are the three things which are key ingredients, core to the inner self of mine. And I believed in that. If you're not passionate about something that you are doing, if you're not disciplined about something that you are doing, because people are our greatest assets in whatever role I've been, right? When you transition yourself into middle level managerial role or higher level hierarchy role, people should look up to you, how you demonstrate things, how you set an example to them, because preaching is endless. Whatever you preach, it is at the end of the day, it's just preaching. You have to set examples, and for setting examples, you have to be disciplined. I cannot be saying people here, come on office at time, you should be here by 9. If I step into office at 8:50, people will definitely come at 9 because they follow me, right, as a leader. So I have to first change myself. If I want to justify that position, then people may start changing their thinking. Yeah, she's deserving, she's different, she's doing something exceptional, so she may handle this. So then you snatch that. So perception changes. Actually, we do not have to snatch. Actually, we have to earn those things by doing it in a disciplined manner. I think so. I strongly believe. That's what. इतना एफर्ट करेंगे Yes, तो कितना definitely. दुनिया मतलब इग्नोर कर देगी कि नहीं. Right. Wow, that's really interesting. तो काफी बार ऐसे भी स्टीरियोटाइप्स होते हैं, ऐसे भी बिलीव्स होते हैं कि हमेशा टाइम पे पहुंचने के लिए या फिर बहुत आगे जाने के लिए कहीं फैमिली सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं. ये सच है, ये झूठ है, ये सब कुछ मैनेज हो सकता है? क्या लगता है आपको? I think it can be managed. बस you have like I said कि हमेशा ताली दो हाथों से बजती है, तो it is always there in this also. फैमिली के लिए sacrifices या फैमिली का sacrifice करने की जरूरत नहीं है to become a career woman. You have to take them also with you, along with you. They understand that yes, you are also having some aspirations, you have your own individual identity, and they also respect it. If you
sit with them and talk to them, and then the things can be sorted out. Like I will say my biggest support in all these 16 years have been my husband and my mother. Without them, I think I would have done nothing. And even my kids, my younger daughter was 2.5 years when I left all the family members and went to some other location for at आपकी least बैंक में तो ट्रांसफर transfers होते रहते हैं. So for 4 years I went to some other location without my kids and my family, my husband, my mother. And the family took care of them. Yeah, the family took care of them, and even my kids were also very sensitive to this. Ki yes, mama is working outside, so whenever she comes on weekends, we have to take care of her. It is not required that she will take care of us. Wow. They took care of me. So that was like That's a role switch. Yeah, that's a role switch basically. So yes, it can be done. It is possible कि आपकी family आपको हमेशा support करे. बस you आपको also क्या have to लगता be है सपना? supportive. Sir, to me, life is like riding a bicycle, right? Without a balance, you cannot even ride a cycle. Forget about life, right? So balancing is very important, pretty important. Everything and anything can be achieved along with your career goals, along with your personal life, right? So somebody who is sitting at home, not doing anything, they also don't cook at these times. They also don't take care of their, kids yeah. well. So we are doing both things, and it's pretty absolutely manageable. There's no doubt about it. I also have been in Bangalore for job for so many years, but my daughter was staying here, right? So the only thing, whenever she gets down with this thing, the mama is not with me, I used to tell her, look, go and watch Mary Kom. Okay, she has left her like 9 months child to play for India, right? Yes. So your mama is not playing that level of war, but she is also playing level of war in her own terms. Yeah, so you that's should great. support her, and once you grow up, you'll realize how much it is important to generate your own worth, right? To intact your individuality, to not let go what Sapna in herself is. So you'll be proud of that later on. So gradually she also realized that, and now she's very proudly, telling her friends. मामा आप आज ऑफिस क्यों नहीं जा रहे? Telling her friends also in PTMs that my mama is like businesswoman. She's entrepreneur. So that's a proud moment. Suddenly the thinking gets changed, right? It's about mindset, right? Yeah. So, and it's a constant practice. It's a way of life, right? It'll not come in one day. So you have to constantly put efforts. If you're very impatient about results, you might not reach anywhere in life, right? So you have to be patient, stay calm, and keep doing your work. Suddenly you will see, oh, I have become this in life. So people will come to you and they'll tell you, oh, you don't realize this is a big thing that you have become. That's so beautiful. Then you realize, oh, I have achieved something. Oh, it's a proud moment to us. It's like climbing a stair each day. Yes. Gradually you reach करते at रहिए, the top करते of the जाइए, करते mountain. जाइए. Like अब हर दिन सोचेंगे यार 2 महीने तो मैंने बहुत मेहनत करी है, इस 2 महीने का रिजल्ट क्या है, इस 3 महीने का रिजल्ट क्या है, ऐसे नहीं आएगा, नहीं आएगा ऐसे रिजल्ट. And that applies to all men Every- and women and every. Of course, sir. मतलब I am somebody I highly believe in being fair and equal to people. Women should never think that since they are women, so they can go up the ladder very easily or quickly by trying different ways. That's not required. Just be. That's just, not fair. Fair That's not also, fair yeah, that's also. not fair also. Just honestly keep doing your work. You will Work. reach. Create your wherever worth, and you will reach Yeah, where you want to. wherever Create your you- worth by doing your work. Honestly, that is very much And important. we all know, sir, respect can never be gained like that, right? You have to earn it. You have to create your space, right? So that people look up to you. People want to talk to you. People want to spend time with you. Why? Because you have generated worth for yourself, right? So that's very important. By your fair attitude, by your dedicated work, by your efforts. Yeah, I always tell my subordinates that do your work in such a way that you become indispensable for your organization. With all the business also, and also your ethics and your compliance. So the organization will never ever think that you leave the organization, and then you can always be at the pinnacle after growing in the years that go on with your disciplined and bilkul honest working. Would you have been so successful if families would not have supported you so much? I don't think so. I don't think so. Yeah, because definitely. family support is like a Oxygen, I think. oxygen to us, right? So it's very much needed because we have to align people in our families
what we want from our lives, how we want to live our lives, where we want to reach, right? So that's the only way, because family is a huge support system in any way, right? So if, see, you spend like 10 hours of your day at work, or maybe more than that at higher positions, right? So if you come back home, you want a cool, calm, peace environment at least. If everybody is cribbing about you, or everybody is not happy with the work, the तुम way तो घर टाइम पे नहीं आती हो। हाँ, yeah. सारा खाना मैं ही बनाती हूँ, या कुक लगा दिया तुमने खाने का, तुम खाने कब बनाओगी? तो अगर यही चीजें करते रहेंगे तो we can never rise. So true. The reason why I asked this question to both of you is that prior research and very very large portion of research suggests कि सिर्फ वही वुमन सक्सेसफुल होती हैं जिन्हें फैमिली सपोर्ट मिलता है. So gentlemen, if you have a girl at home, believe you me, you can do wonders with her. Give her the space, give her the freedom, give her the education, and she can completely transform your family. तो एक मौका दीजिए अपने बच्चों को, खास करके गर्ल्स को. Okay, this is really interesting. मुझे ये बताइए कि जब आपने फैसला लिया कि आपको कॉर्पोरेट में काम करना है या आगे बढ़ना है, क्या उसमें फाइनेंशियल फ्रीडम भी कभी एक रीजन रहा है कि आई नीड टू बी फाइनेंशियली फ्री, मैंने अपनी फैमिली से पैसे नहीं मांगने, या ये रीजन नहीं होता है, कोई और रीजन होता है? थोड़ा इलेबोरेट कीजिए प्लीज. सपना पहले आप बताइए. मेरे केस में सर, द डे आई हैव पास्ड आउट फ्रॉम माई पोस्ट ग्रेजुएशन, आई हैव नॉट टेकन अ सिंगल पेनी फ्रॉम एनीवन, राइट? बी इट माई फैमिली, माई ओन फैमिली, और माई अदर साइड, राइट? तो फाइनेंशियल फ्रीडम एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी इसके बारे में. कि हर गर्ल को, हर वुमेन को ये समझना चाहिए कि आप किसी और का पैसा ले सकते हैं, किसी से ले सकते हैं, कोई आपकी ख्वाहिशें पूरी कर सकता है, लेकिन जो अपना खुद का पैसा होता है ना, उसकी जो मजा है, उसका जो चार्म है, वो जो आप अपनी मर्जी से आज मुझे कुछ भी पसंद आ जाएगा, मुझे 10,000 की चीज पसंद आती है, 15 की पसंद आती है, मुझे हेजिटेशन नहीं होती. ऐसा नहीं कह रही हूँ कि कोई और फैमिली में आपको दिलाएगा नहीं, फैमिली वाले आपको दिला देंगे, लेकिन जो चॉइस ऑफ फ्रीडम आप अपने पैसे में फील करोगे ना, जब आपका मन करेगा जिस चीज पे हाथ रखने का, आप ले पाओगे. यू विल फील ग्रेट अबाउट इट. इट्स अ ग्रेट सेंस ऑफ अचीवमेंट. आई वुड से विमेन के लिए बहुत बड़ा रीजन है कि उनको काम क्यों करना चाहिए. They should be financially independent, or they should have certain amount of saving with them, and they should strive towards it, that yes, this is something that I have generated, created my own worth, and it is about me. I'm not saying कि अपना पैसा बचा. This is my money. मैं ये नहीं कह रही हूँ सर, आई एम नॉट गिविंग अ मैसेज, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, कि अपना पैसा बचा के ही रखना है, दूसरे वाले से खर्चा चलाते रहो. ऐसा नहीं है मैसेज. आप जब एज अ जॉइंट पार्टनर भी हो, या फिर आप अपनी फैमिली में भी हो, मदर फादर के साथ भी हो, आप खर्चे करिए, हर चीज के खर्चे करिए. और अब जब मम्मी पापा के लिए खुद के पैसे से खुद करते हो ना, that feeling is very different. Also मैं वो feeling, आपको जो नींद आएगी, और बढ़िया जो उन्होंने पेन्स सहे होते हैं ना आपके लिए. मैं आपको एक थोड़ी सी रियल स्टोरी बताती हूँ, बहुत छोटी सी है, कि मेरे साथ ऐसा हुआ था जब मैं 10th में शायद पढ़ रही थी. तो मुझे एक ख्याल आया था, मतलब मैं ज्वेलरीज देखती थी जैसे अपने घर में, तो मुझे एक ख्याल आया था, यार किसी दिन मेरे पास पैसा होगा ना, तो मैं गड्डी में पैसे ले जाऊंगी और मम्मी के लिए ना ऐसे बड़े झुमके बनवा दूंगी. तो ये 10वीं के बच्चे का ख्याल आया था सर. तो अभी कुछ रिसेंट टाइम्स पहले, 1.5 साल पहले, मैंने ये सपना अपना खुद का पूरा किया है. proud of you. तो मैंने, और वो सपना क्योंकि ऐसा था कि मैं कैश पैसे लेके जाऊंगी, उससे मैं समझ नहीं थी कि क्रेडिट कार्ड या कोई फोन पे यूपीआई आ जाएगा उस टाइम पे. तो मैंने कहा नहीं, ये सपना डाइल्यूट हो जाएगा अगर मैंने ऑनलाइन कर दिया तो वो डाइल्यूट हो जाएगा. मैं बैंक गई, बैंक से जाके मैंने इतना सारा कैश निकाला, जो भी मतलब काफी सारा कैश था, वो 80-90 हजार उस टाइम पे. तो बैंकर बोला आज पहली बार आपने 10 साल में पैसा निकाला है. तो मैंने बोला आज कुछ ऐसा रीजन है भैया कि मुझे कैश ही चाहिए. वो सपना वैसे ही देखा था, वो वैसे ही, क्योंकि वो पिक्चर है दिमाग में, क्लियर सेट थी वो पिक्चर. वो वैसे ही पूरी नहीं होगी तो आधा डाइल्यूटेड लगेगा कि यार पूरा तो हुआ पर आधा डाइल्यूटेड हुआ. तो जाके जब मैंने गोल्ड वाले को, सुनार भैया को, जब वो हैंड ओवर करी गड्डी अपने हाथ से, मैंने कहा मम्मी आज नहीं रही है पूरा हुआ, आप पहनो अपने आराम से. तो छोटी सी बात है बहुत, लेकिन बहुत
बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मेरी मम्मी को भी कहीं ना कहीं शायद प्राउड हुआ होगा मुझ पे, और मुझे तो बहुत ही अमेजिंग फीलिंग आई थी जैसे मैंने पूरी दुनिया दे दी उनको। बहुत छोटी सी बात है ये। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रगति, आप बताइए, सर डेफिनेटली सर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड नॉट बिकॉज ओनली जैसा कि मेरे अपने लिए इंपॉर्टेंट है, इट ऑल्सो गिव्स यू वेरी गुड फीलिंग व्हेन यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू योर फैमिली, लाइक यू आर ऑल्सो वन ऑफ दोज पीपल की येस आई एम ऑल्सो द ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली। तो दैट फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैं एक छोटा सा किस्सा अपना भी बताती हूँ। व्हेन आई वाज इन लखनऊ फॉर मतलब मेरा जब ट्रांसफर हो गया था फॉर 4 years, तो आई यूज्ड टू कम ऑन द वीकेंड्स टू माय होम ओनली ऑन सैटरडेज और संडेज। तो मैं अपने मम्मी पापा के साथ ही रहती हूँ, एंड माय हस्बैंड एंड वी ऑल लिव टुगेदर, लाइक यू कैन से माय टेक्निकली माय मायका एंड ससुराल इज इन सेम हाउस। सो हमारे साथ ये होता था कि जब मैं आती थी तो आई ऑलवेज गॉट दैट रॉयल ट्रीटमेंट कि यार जैसे पुराने ज़माने में होता था कि घर में सारे लोग रहते हैं और घर का जो पुरुष है वो बाहर गया है कमाने के लिए और हफ्ते 10 दिन बाद महीने भर बाद आता है। सो आई ऑलवेज फेल्ट लाइक दैट कि यार घर का कमाऊ पुत्र है, वो कमाई करके आ रहा है वापस। एंड माई हस्बैंड, माई किड्स, माई मदर, माई फादर, दे ट्रीटेड मी सो रॉयल, लाइक यू ऑलवेज मतलब जस्ट बिकॉज क्योंकि वो उनको पूरा हफ्ते भर मुझे मिलते नहीं थे वो कि वो मुझे पैम्पर करें, दे ऑलवेज फेल्ट कि यार वो लड़की अकेले रहती है बाहर, अपने आप सारा काम करती है। तो वो फीलिंग इतनी अच्छी होती है ना कि यस आपकी फैमिली में यू आर सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, नॉट बिकॉज आप सिर्फ ब्रेड अर्नर हैं, इसलिए भी बिकॉज यू आर ऑलरेडी सो मच इमोशनली कनेक्टेड टू योर फैमिली एंड दे आर ऑल्सो लिविंग योर ड्रीम्स टुगेदर विद यू। मतलब आपका अगर सपना है कि यार मुझे कभी हायर पोजिशन पे जाना है तो योर सन इज ऑल्सो इक्वली ड्रीमिंग अबाउट इट। ही इज ऑल्सो आस्किंग यू रेगुलरली, ही इज ऑल्सो आस्किंग यू अबाउट द अपडेट्स कि कैसा चल रहा है ऑफिस में आपके, क्या हो रहा है। तो दोज थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर फाइनेंशियल रीजंस कि आप उनके सारे सपने पूरे कर दे रहे हैं या बच्चों ने जो कहा आप उनको दिला पा रहे हो, बट इसलिए भी कि वो बहुत इमोशनली आपसे कनेक्ट हो पाते हैं। एंड पॉसिबली इसलिए भी कि the kids also look up to you. Yeah. If my mother can do all these hardships and still manage everything, my daughter is only 9 years right now, and उसका अभी से है कि मुझे मम्मा की तरह बैंकर बनना है, मुझे मम्मा की तरह बैंकर बनना है। शी इज ऑलवेज मम्मा जैसे बैंक जाती है मैं भी बैंक जाऊंगी और भैया पापा की तरह फील्ड में जाएगा। उसका ये है अभी से। तो आई वांट टू प्रूव दिस। छोटा सा पॉइंट सर इसमें ऐड करने जा रही हूँ, सॉरी टू कट यू डाउन, बट दिस इज इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, कि मैं उन सब लड़कियों को ये बोलना चाहती हूँ कि आप ये बिल्कुल ना सोचें कि आप अगर IIT नहीं गए हैं, IIMs नहीं गए या कोई बहुत बड़े इंस्टीट्यूट तक आप नहीं पहुंच पाए तो आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। फाइनेंशियल फ्रीडम इज नॉट अबाउट दैट। आपने जितनी भी पढ़ाई हासिल की है, जो भी स्किल्स एक्वायर की है, उसको यूटिलाइज करिए, घर में मत बैठिए। आप जो कर सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूटर बनिए, खुद के लिए बनिए, फैमिली के लिए बनिए, अपने बच्चों के वेलफेयर के लिए बनिए, उनके लिए सपने देखिए। क्योंकि आप देखिए अगर कोई भी इंसान मान लीजिए सपोजिटली 25,000 कमा रहा है और सेकंड पार्टनर भी 25 कमा रहा है तो 25 और 25 50 होता है। तो आप वो सपने डबल स्पीड, रॉकेट स्पीड से जल्दी जल्दी पूरे भी कर सकते हैं और आप और बड़े सपने देख सकते हैं। तो आपको कोई जरूरत नहीं है सोचने की कि मैं तो बाहर यूनिवर्सिटी से पढ़ने नहीं गई हूँ, मैं तो US नहीं गई हूँ, या मैंने कोई GMAT या कोई बड़ा एग्जाम ऐसा कुछ तोड़ा नहीं है जो मैं तो कुछ नहीं कमा पाऊंगी। ऐसा नहीं है। आप जिस भी लेवल पे हैं अपनी स्किल्स को, अपनी एजुकेशन को जरूर से यूटिलाइज करिए और एम्प्लॉयमेंट हासिल करिए या खुद का कुछ काम करिए। इट विल हेल्प यू, इट विल गिव यू अ प्राउड फीलिंग। डू द बेस्ट दैट यू कैन। जैसे कि आपने पहले भी कहा, एक एक सीढ़ी चढ़ो, बहुत नीचे से भी शुरू करोगे तब तो यू विल रीच। या डेफिनेटली स्टेयर्स तो हैं ही, इसीलिए कि आप धीरे धीरे करके चढ़ते चलें। आई वांट टू प्रूव दिस फाइनेंशियल एस्पेक्ट फर्दर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सबको समझना जरूरी है। एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च तो यही कहते हैं कि वर्किंग वुमेन भी घर के मेजर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स को नहीं समझती हैं। वर्किंग वुमेन भी 95% वुमेन घर के इन्वेस्टमेंट्स के फैसले नहीं लेती हैं, स्टॉक मार्केट से दूर रहती हैं, म्यूचुअल फंड्स नहीं खरीदती हैं, ज्यादा से ज्यादा बस थोड़ा गोल्ड में इन्वेस्ट कर देती हैं, रियल एस्टेट के फैसले नहीं लेती हैं। आपको क्या लगता है, आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं और आइडियली क्या होना चाहिए? मेरे केस में तो मैं सर बोलूंगी कि हम फैसले ले लेती हैं, लेकिन शायद हमें हर बार वैलिडेशन चेक से गुजरना पड़ता है कि हाँ भाई इसने फैसला लिया, एक बार फिर सोच लो। तो ये वैलिडेशन चेक्स हमें हमेशा मिलते रहते हैं, प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल हो। हमें वो सिंगल हैंडेड ओनरशिप शायद तभी मिलेगी जब मैं एक प्लेन लेके उड़ जाऊंगी, पायलट बन जाती कि भाई ये ही ले जा रही है, पैसेंजर्स इसने ठीक ठाक उतारे हैं तो ये सही चला रही है। शायद उस समय वैलिडेशन की जरूरत ना पड़े, उसके अलावा शायद हमें हर बार वैलिडेट करने की जरूरत पड़ती रहती है। लेकिन
अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे इन्वेस्टमेंट का सवाल है या रियल एस्टेट का सवाल है, मतलब मुझे तो लगता है कि हाँ हम अच्छे से, बहुत अच्छे से फैसले लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर ये होता है कि हम ओवर कम्युनिकेटिंग होते हैं। मैं तो हूँ, मतलब मैं क्या है कि फिर भी एक बंदे को लूप में रख के कंसल्ट करते हैं कि भाई ये सही डायरेक्शन में मैं जा रही हूँ, क्योंकि ये बड़े डिसीजंस होते हैं। सो आई वांट समबडी टू बी अ पार्ट ऑफ इट, नॉट अबाउट कि वो डिसीजन लेगा, बट इट इज ऑलवेज गुड टू हैव सजेशन, जॉइंट डिसीजन, फैमिली, और वैसे भी फैमिली को इन्वॉल्व कर रहे हैं ना, उनका कोई अपना ऐसा हार्श बेनिफिट या हार्श कोई फीलिंग्स नहीं होंगी, yes. they will tell you the truth, they will tell you the truth, उनके भी अपने एक्सपीरियंसेस हैं, बड़ों के भी, तो इट ऑलवेज हेल्प्स। तो ले तो सकते हैं, लेकिन हाँ वो वैलिडेशन जरूरत होती है। प्रगति, आपके क्या इसके बारे में ऑब्जर्वेशन? सर माय ऑब्जर्वेशन इज लाइक बेसिकली होता यही है कि हम बीइंग ऑन द टॉप रोल्स आल्सो, हम समटाइम्स वी डू नॉट टेक डिसीजंस रिगार्डिंग टू द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। वी उसके दो रीजंस भी हो सकते हैं कि होता है कि जैसा कि मैम ने भी बोला कि वी नीड वैलिडेशन, ऑलवेज वी हैव टू गो थ्रू दैट वैलिडेशन पार्ट। और सेकंड सर एक ये भी है कि समटाइम्स ना वी आर सो मच इनग्रॉस्ड इन आवर वर्किंग आल्सो कि वी से यार दिस, इसके लिए आप हो, यू आर हियर फॉर दिस। तो वो वाली ये जो अपब्रिंगिंग है ना कि यार ये चीजों के लिए हस्बैंड ही है या फिर इन चीजों के लिए पापा ही हैं, तो लेट देम डू ऑल दिस। आई विल टेल यू अ वेरी स्मॉल थिंग। व्हेन आई वाज इन लखनऊ, तो मैंने मोटर ट्रेनिंग स्कूल से कार चलाना सीखा। सब कुछ हो गया, 20 days एंड ऑल दैट सब हो गया। उसके बाद द टाइम केम कि अभी कार लेते हैं, तो हस्बैंड से ठीक है जाओ तुम ले लो कार, क्या प्रॉब्लम है? यार गाड़ी लेनी है, कोई कपड़े नहीं खरीदने जाना है, यू विल हैव टू कम विद मी। तो समहाउ ही वाज नॉट एबल टू कम एट दैट टाइम, ही वाज ट्रैवलिंग। गाड़ी खरीद ली? नो, मैंने नहीं खरीदी। मैंने कहा नहीं खरीदूंगी तो आप ही के साथ खरीदूंगी, आई एम नॉट एबल टू लाइक। तो ये हमारे अपने अंदर के इनहिबिशंस होते हैं। women do have all those inhibitions because अभी तक की वो अपब्रिंगिंग हमारी ऐसी ही रही है। So yes, definitely we need to teach the girl child also regarding all these financial terms, all these financial independences, क्योंकि ये आगे की जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है कि हम उनको इन चीजों के बारे में भी ग्रूम करें। नॉट ओनली कि हाँ आप ऑफिस चला सकते हो, यू कैन ऑल्सो, गाड़ी चला रही हैं लेडीज, ऐसा नहीं है, लेकिन आज भी शायद वो गाड़ी खरीदने का डिसीजन उनके हस्बैंड या उनके पेरेंट्स लेते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, यू नो हियर आई वुड से बाइंग अ कार इज अ फैमिली डिसीजन। वो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना कि आप, मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, यू कैन डू एवरीथिंग। हाँ, हस्बैंड सेड कि व्हेन यू कैन डू एवरीथिंग, तो व्हाई कैन यू गो एंड बाय अ कार? मैंने कहा नहीं भाई, इट इज नॉट कि भाजी तरकारी खरीदनी है, यू विल हैव टू कम, बच्चे भी होने चाहिए साथ में, तो मजा ही नहीं है, दैट इज व्हाई। बट हाँ, ये हमें उनको इंडिपेंडेंस के लिए उनको एजुकेशन देना पड़ेगा। फॉर स्टॉक मार्केट, फॉर म्यूचुअल फंड्स, फॉर इन्वेस्टमेंट्स, फॉर FDs, women should be empowered enough to take their decisions. So women are, because I'm in financial sector, I will say women are taking decisions regarding this, but they are solely dependent on the financial advisor they are dealing with. Like अगर banks में आती हैं females की मेरा कुछ पैसा है, मुझे छुपा के करना है अलग से, कि savings के point of view से, तो they are solely dependent on the person they are dealing with on the counter जो है उसके साथ। तो अभी yes, there is a high need कि हम उनको भी educate करें। Financial education की बहुत जरूरी है। You know, for your saving and investments, financial literacy and preparing them or generating that readiness for any uncertain, unforeseen situations. Exactly. That's very important. People don't realize that. So financial awareness is one part of story, and savings, right? At least emergency fund. See, when we grow up in our roles, our salaries get grow in proportion, in same proportion. But what is the bad thing that we follow is in terms of we keep on raising our living standards in same proportion. When I was earning 20,000, I was so happy. I was so happy. But when I reached to a level, for example, I am taking say 80,000 salary, then also I am not able to save anything because I've raised my living standards that way. Very powerful. This 0 and 0 should not be the case. Keep some money. जैसे आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, वैसे ही आपकी फाइनेंशियली हेल्थ भी सीढ़ी चढ़नी चाहिए। चढ़नी चाहिए। आप पहले 2,000 बचाते थे, तो आप अपनी सैलरी का कितना % बचाते थे, उसी प्रोपोर्शन में बचा लिए। लाइक अभी आई हैव अ रूल कि जनरली एज आई एम इन जॉब, तो हर साल कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट्स होते ही हैं, तो जो इंक्रीमेंट हो रहा है उसकी अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो डू इन्वेस्ट इट, बट वो इन्वेस्टमेंट शुड नॉट ओनली बी इन लिक्विड, लाइक नॉन लिक्विड फंड्स में नहीं, सम प्रोपोर्शन इन
liquid, some proportion in non-liquid funds. कि you have some emergency funds also. So like what I do is like I keep on raising that investment portion every year. I try to do that every year. So but that ma'am emergency comes from that sector, so she's Yeah, much that is why I'm confident saying that. But I want to tell this very in simple words कि लोगों को लगता है कि फाइनेंशियल स्टॉक मार्केट वो बहुत डरावनी चीज है, ये तो बहुत रिस्की चीज है. हम सिंपल भाषा में उनको ये कन्वे कर सकते हैं कि आपको डिफरेंट किस तरीके से अपने फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, राइट. अर्जेंसी फंड क्या होता है, क्यों चाहिए होता है, पॉलिसी आपको अगर करनी है 1-2 तो क्यों करनी है, हेल्थ पॉलिसी करनी है तो क्यों करनी है. तो यू हैव टू spread it out. You don't have to put all, you tell it in a very, this is a very common scenario, you don't put all eggs in one basket, right? So उनको ये समझाने की जरूरत है जो liquid investment वाली चीज है वो बहुत ही छोटा सा portion है आपकी सैलरी का, and that is optional. No one is pushing you or forcing you to do so. Don't do so, but go for the fixed ones at least. Yeah, so definitely. that you generate some wealth for yourself in future. Because see, हम सब एज के साथ तो बड़े होंगे ना, हमेशा तो काम नहीं करते रहेंगे ना. 50-60 के बाद तो नहीं कर रहे होंगे ना. नहीं, आई थिंक आप करोगे. उसके बाद क्या? 80 तक करोगे. नहीं, मैं करूंगी, लेकिन सब लोग नहीं करते. सब तो नहीं करते हैं. तो उसके बाद क्या? तो आप, क्योंकि जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उस प्रोपोर्शन में सैलरी कभी नहीं बढ़ेगी. Yeah, these are the aspects women really need to understand and care about. बहुत इंटरेस्टिंग बातें आपने बताई हैं. We can feel कि आपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गेन करी है, आपने रिस्पेक्ट अर्न करी है. कुछ जो मेरे चैनल पे यंग गर्ल्स ये डिस्कशन सुन रही होंगी, एस्पायरिंग कुछ बड़ा करना चाहती होंगी, कॉलेज में होंगी, अर्ली स्टेज में होंगी, उनको कुछ अपने लाइफ से इंपॉर्टेंट लेसन्स देकर जाइए कि क्या कुछ चीज़ें हैं जो वो आपसे सीख सकती हैं, जो उन्हें अपने दिमाग में रखनी चाहिए. दे हैव अ लॉन्ग वे टू गो. या डेफिनेटली. सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी, बिलीव इन योरसेल्फ. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अपने ऊपर, खुद के ऊपर यकीन करना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज बीइंग अ फीमेल, आपके साथ बहुत बार ऐसे सिचुएशंस भी आते हैं व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी गुड बैकग्राउंड ऑल्सो, यू आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड ऑल्सो, आपका कॉलेज भी बहुत अच्छा था. अब अभी व्हेन यू कम टू द जॉब प्लेस ना, या फिर इफ यू आर स्टार्टिंग योर स्टार्टअप ऑल्सो, देन देयर इज अ ग्राउंड जीरो. देन आप चाहे कहीं से भी आए हो, वहाँ पे यू आर ऑल इक्वल फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज अभी आप ग्राउंड जीरो पे, यहाँ पर आपको अपना स्टार्ट करना है अभी. सो ओवर देयर यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ. देयर मे बी people who are better than you, there may be people who are not better than you, but keep on going at a pace जो कि required है हमेशा. Be disciplined. इनहिबिशंस बहुत होते हैं फीमेल्स में अपने अंदर, अपने लिए, कि पता नहीं मैं ये कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी. डोंट गो बाय दैट. आप जो भी कर रहे हैं, प्लीज डू इट वेरी वेल. कुछ इनहिबिशंस समाज ने बनाई हैं, कुछ वुमेन ने खुद बनाई है. तो समाज वाली तो ब्रेक करना बहुत इजी है, बट जो हम खुद बना लेते हैं ना, बिकॉज दैट वॉल इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय अस अराउंड अस, तो उसको तोड़ना बहुत जरूरी है. तो आई विल ऑलवेज से टू द एस्पायरिंग यंग गर्ल्स कि आप जो भी कर रहे हैं, प्लीज डू इट विद फुल कन्विक्शन, फुल बिलीफ, एंड ऑलवेज हैव द बैक ऑफ योर फैमिली विद यू. बिकॉज आपके फैमिली का सपोर्ट इज द बिगेस्ट मोटिवेटिंग सोर्स जो आपको लाइफ में कहीं भी आगे ले जा सकता है, कहीं भी. यू आर लाइक देन द ओनली द, आई विल से, स्काई इज द लिमिट फॉर यू. And I will like to end it with 2 lines of my own poems. They are राह ये आसान नहीं मगर चलना है, चाह ये सामान्य नहीं मगर चलना है, दिलों से नफरत की दीवार को मिटाकर मोहब्बत का घर करना है, घर करने का सामान नहीं मगर करना है, राह ये आसान नहीं मगर करना है, चाह ये सामान्य नहीं मगर करना है. So please girls, go for it always. Amazing, amazing, wow, so cool. सपना. यस सर, मेरे हिसाब से मैं सारी गर्ल्स को यही मैसेज देना चाहूँगी, जहाँ पे भी हो, जिस भी लेवल पे हो, जिस एजुकेशन जो भी आपने हासिल किया, जो स्किल्स कॉम्पिटेंसीज आपके पास हैं, उसको यूटिलाइज करो. और बड़ी पोजीशन में आना, अथॉरिटी में आना सबको अच्छा लगता है, सबको पसंद होता है, लेकिन उसके लिए कितनी मेहनत लगती है उसको इग्नोर मत कीजिए प्लीज़. मेहनत बहुत जम के करिए और गिव अप मत कर दीजिए. अगर एक बार भाई ने सपोजिटली मना कर दिया, नहीं तेरे बस की कुछ नहीं है, तू बैठ जा, तू नहीं कर पाएगी, या किसी ने सपोर्ट नहीं किया, तो स्ट्रगल करने पड़ेंगे आपको. फैमिली एक बार में नहीं मान जाती है. आप उनको दिखाओ कि मेरे सपने कितने बड़े हैं, मेरा पोटेंशियल कितना बड़ा. यू हैव टू मेक देम रियलाइज. फर्स्ट थिंग, जैसे मैम ने बोला, बिलीव इन योर सेल्फ. पहली बात आपसे शुरू होती है. आप खुद भी बिलीव करते हो अपने आप में कि आप खुद कर सकते हो. अगर आपको कन्विक्शन आ गया है खुद से, तो दूसरों को कन्विंस कर लो. कैसे करोगे? उसके लिए मेहनत लगेगी आपको. एक बार में कोई नहीं समझ जाएगा आपकी प्रॉब्लम्स.
लगे रहिए, फाइटर स्पिरिट रखिए अपने अंदर और मेहनत करते जाइए लगातार। लेकिन एक और पॉइंट इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी, मैंने पहले भी ये बात बोली है कि मेहनत लगातार करते जाइए, कंसिस्टेंटली करते जाइए। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करना भूल जाइए, नहीं। हर छोटा माइलस्टोन जब आप सेलिब्रेट कर लेते हैं ना, तो आपको खुद में एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है कि हाँ यार मैंने ये गोल सेट किया था खुद के लिए और मैंने ये इतना तो कर लिया, अब लग रहा है कि शायद मैं अगला वाला भी कर पाऊंगी। तो इट जस्ट सीरियसली इट जस्ट कीप्स यू गोइंग, राइट। सो रुकिए मत कहीं पे भी, पहले खुद को कन्विंस करिए, फिर सराउंडिंग्स को चेंज करिए अपने हिसाब से। अगर आप पॉजिटिव इम्पैक्ट जनरेट करने वाले हो, कुछ कंस्ट्रक्टिव करने वाले हो लाइफ में, कोई नहीं रोक सकता आपको। आपको सिर्फ एक ही आदमी रोक सकता है, वो आप खुद हो। अगर आपने खुद को सोच लिया कि मुझे करना है, शायद आपको दुनिया में कोई नहीं रोक पाएगा। पर आपका विश्वास इतना मजबूत होना चाहिए, आपका करेज इतना मजबूत होना चाहिए कि वो सारी दीवारें तोड़ता चला जाए, चाहे वो सोसाइटल हो, पेरेंटल हो, फैमिली हो या आपकी खुद की इनहिबिशंस हो, सब टूट जाएंगी। आप पहले अपने अंदर तो वो करेज लाइए कि हाँ मुझे करना है, वो करेज लाइए अपने अंदर, तो हो जाएगा। सो ब्यूटीफुल पॉइंट्स। अपने ऊपर बिलीफ रखना है और एक एक कदम चलते चले जाना है, एंड देन नो वन कैन स्टॉप। और छोटी सी अचीवमेंट भी आए तो उसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए कि अरे ये तो छोटा ही है। सेलिब्रेशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। सेलिब्रेटेड, छोटी सी छोटी चीज आप हासिल करते हैं ना, सेलिब्रेट कर लो, अपने आप को ट्रीट कर लो बढ़िया तरीके से, तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आ जाएगी, गुड फीलिंग आ जाएगी, यार मैं इतना कर गई तो शायद कर पाऊंगी आगे। एंड वन मोर पॉइंट, एंड डू ऑल दिस विद कीपिंग ऑल योर पीपल अलोंग विद यू, लाइक मे बी इन योर प्रोफेशनल place, maybe at your personal space, keep all those people always along with you, because people are your I will say people are the biggest resource, and they are also the biggest strength of any person. जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ आप रह रहे हैं, वो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकते हैं, क्योंकि इट इज़ नॉट लाइक कि मैंने ही सब कुछ मुझे पता है, मैं पिनाकल पे पहुंची तो मुझे सब आता है। यू हैव टू लर्न कंटिन्यूअसली। आपको अपनी लर्निंग का प्रोसीजर हमेशा कंटिन्यूअसली जारी रखना होगा। आप समटाइम्स अपने सबऑर्डिनेट से भी बहुत कुछ सीख सकते हो, तो प्लीज ऑलवेज कीप दैट लर्निंग का जो माइंड फ्रेम है ना, वो अपना हमेशा ऑन रखिए, स्विच हमेशा ऑन रखिए। के पॉइंट से कंटिन्यू कर रही हूँ कि जितना ऊपर आप लेडर पे जाओगे ना, उतनी ईगो को नीचे लाते जाओ। बिल्कुल, वेरी ट्रू। हम्बल होते चले जाओगे तो और ऊपर बढ़ते चले जाओगे, और ईगो साथ में बढ़ी ना अगर उसी प्रपोर्शन में, तो ऐसे नीचे जाओगे कि कुछ नहीं बचेगा। ईगो नहीं बढ़नी चाहिए, आपकी फाइनेंशियल वेल्थ बढ़नी चाहिए। बढ़ती जाएगी और ईगो को ग्राफ नीचे गिराते जाइए। जैसे पोजीशन बढ़ रही है ना, ईगो नीचे आती जानी चाहिए, हम्बलनेस बढ़नी चाहिए, लोगों को काइंडली ट्रीट करिए। पीपल आर योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ एंड एसेट्स। घर के लोग तो सपोर्ट, मैम ने जैसे बोला, बहुत सारे मतलब मुझे लगता है 80% कन्विंस हो जाते हैं, लेकिन बाहर के लोगों में अपनी वर्थ जनरेट करने के लिए ईगो डाउन करना ही पड़ता है। दैट्स द ओनली वे कि आपको करना ही चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी आपको एक लाइन के साथ ही खत्म करना चाहूंगी इस कॉन्वर्सेशन को सर। अभी तो चंद गज की दूरियां नापी है मैंने इस जमीन पर, अभी तो चंद गज की दूरियां नापी है मैंने इस जमीन पर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। Very nice, very nice. And I am sure you are gonna touch those skies, both of you. आप तो नहीं रुक सकती हैं. And those aspiring girls who are watching our channel, this conversation, I am sure आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए होंगे प्रगति और सपना की बातें सुन के। बहुत ही सिंपल स्टोरी उन्होंने बताई है कि लगे रहना है, चलते चले जाना है और अपने अंदर बिलीफ नहीं खोना है, फैमिली को साथ लेके चलना है, और फैमिली से अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा है तब भी कुछ कदम आगे बढ़ाने ही है, एंड ग्रेजुअली दे विल कम अलोंग। सो गर्ल्स, गो फॉर इट। पूरा जमाना आपका साथ देगा। स्काई इज द लिमिट फॉर यू। आवर बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस।